हेलो एवरीवन। पेपर प्रेशर और सरफेस टेंशन ये दो लिक्विड की प्रॉपर्टी देखने के बाद आज हम देखेंगे और एक प्रॉपर्टी लिक्विड की, इसका नाम है विस्कोसिटी। यू नो दैट लिक्विड्स दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड viscosity it measures the magnitude of internal friction in the liquid. So we can add here liquids have tendency to flow. Viscosity measures the magnitude of internal friction in the liquid. Students, to better understand the property of viscosity, just look at this diagram. और ये diagram जो है it is nothing but the laminar flow of a liquid or fluid through a tube or pipe, we can say. जब भी यहाँ पे पानी फ्लो होगा पाइप में से तो किस तरीके के यहाँ पे होती है velocity. So we can see here there are different layers are present. ये है सेंटर लेयर बिल्कुल, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स हैं. याद रखिएगा जो भी लेयर यहाँ पे टच करेगा इस पाइप के सरफेस को अंदर वाले दोनों तरफ, उस लेयर की जो होगी वेलोसिटी सबसे कम होगी. ओके, द लेयर दैट इज in contact with the surface of that pipe or we can say tube, it is almost stationary, I will say, or having the zero velocity. ठीक है, तो ये जो लेयर होगा ये ऊपर भी एक होगा और नीचे भी होगा जिसकी सबसे कम होगी वेलोसिटी, और मैं कहूंगा बिल्कुल जीरो से है वो. बट एज वी मूव एट द सेंटर फ्रॉम द बॉटम ऑल्सो और फ्रॉम द टॉप ऑल्सो, इफ यू सी प्रॉपरली हियर डिफरेंट लेयर्स आर देयर. तो क्या हो रहा है यहाँ पे वेलोसिटी इज नाउ गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. देखिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा यहाँ पे है और यहाँ पे ज्यादा हो गई, एंड एट द सेंटर इट इज मैक्सिमम. सेम वी कैन टेक हियर, यहाँ पे है थोड़ी कम, यहाँ पे ज्यादा और ज्यादा, और यहाँ पे सेंटर में वो होगी सबसे ज्यादा. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंट लेयर से एवरी लेयर विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी. ओके, and that's why here this kind of flow, it is nothing but known as a laminar flow. Different layers of a liquid flow with a different velocity and this is called as a laminar flow. Different layers of the liquid it will have different velocity and this flow is called as a laminar flow. Flow होते हैं दो टाइप के, laminar flow and turbulent flow. I think in the next year, in the 12th, in the physics, you will also see this topic properly. चलिए हमारा टॉपिक है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले. तो जो होता है लैमिनार फ्लो, यहाँ पे क्या होगा, आपको पता होगा जब नदिया का पानी होता है बिल्कुल शांत की तरीके से ऐसा बहता है शांति से बिल्कुल, then the flow we can say is a laminar flow. But when the flow is rapid or we can say in मराठी आपण त्याला म्हणतो ना खळखळणारं पाणी, it will make some sound, then that kind of a flow is known as a turbulent flow. तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल शांत, जैसे शांत वाहनार पानी. ओके, that is nothing but known as a laminar flow. So different layers of a liquid flow with a different velocity. This is called as a laminar flow. Okay, now what is the meaning of the viscosity? You know that students, these layers are there and these successive layers, अगर ये लेयर है तो इसका होगा ये है सक्सेसिव लेयर, I mean touching each other. So these different layers, they always have some friction
because when the liquid it will have strong intermolecular forces operating. At that time these liquids they have the friction, okay, and the force of friction between the successive layers of a liquid, that is nothing but known as a viscosity. I repeat, the force of friction between the successive layers of a liquid is called as a viscosity. देखिए, the force of friction between the successive layers of a liquid is called as a viscosity. It is the resistance to the flow of a liquid. एक्झाम्पल घ्या, समजा मध आहे, मध म्हणजे हनी, शहद, दुसरं आणि पाणी. जर आपण खाली पाणी ओतलं ते लगेच वाहणार, ठीक आहे. आणि जर आपण खाली ओतलं मध, हनी, तर काय होणार आहे, ते पटकन वाहणार नाही आहे. बोथ दिस टू लिक्विड्स हॅव्हिंग द डिफरंट विस्कॉसिटी. इन हनी there is a more friction is present between the layers, that's why it is very difficult to flow. But in case of a water, there is a less amount of, we can say here, viscosity, that's why it will flow rapidly. Okay, it depends on temperature. Now see which factors are there on which depends viscosity. तो ये है factor number 1, ये है temperature, then the molecular size and the shape. Obviously temperature, and the second one is nothing but molecular size and shape. Larger molecules have more viscosity. अगर molecules large होंगे तो उनको मतलब flow होने में कठिनाई होगी, जल्दी से ये flow नहीं हो पाएंगे. So they are having the high, or we can say here, more amount of viscosity. शेप की अगर यहाँ पे बात करेंगे, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि अगर ये स्फेरिकल रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम से कम होगा रेजिस्टेंस फ्लो होने को. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग द लेस विस्कोसिटी. ओके, सो स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स हैव द लेस viscosity because of the less resistance. And one more thing, remember, you have to remember, viscosity of a liquid is inversely proportional to temperature. Means as the temperature will increase, the value of the viscosity it will decrease. अगर टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा. अगर टेम्परेचर यहाँ पे कम होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. So they are nothing but inversely proportional. Greater the viscosity, slower is the liquid flow. As I told you, honey and water, these two examples, honey is having the more viscosity, that's why it is having the slow liquid flow. क्या होता है इसका यूनिट स्टूडेंट्स? It is expressed as coefficient of the viscosity. इसके लिए हम लोग देते हैं सिंबल ईटा. ये है सिंबल ईटा. और क्या होता है ईटा? It is defined as the degree to which a fluid or liquid, we can say, resists the flow under an applied force measured by the tangential frictional force. You can see tangential. क्यों बोला यहाँ पे? If you see circles are there, तो यहाँ पे क्या बोला? Tangential frictional force per unit velocity gradient when the flow is laminar. यहाँ पे ये जो टर्म है that is known as a velocity gradient, वो पता है क्या होता है? It is equal to change in velocity divided by change in velocity divided by unit distance. That is known as वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेंटर में जो है वो है v वेलोसिटी, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, बाय द फैक्टर dv, there is a change in the velocity, so there is a gradient over there. We can say there is a change in the velocity from center to this surface as well as this surface. So it is defined as the degree to which a fluid
resist flow under an applied force measured by tangential frictional force per unit velocity gradient when the flow is laminar. हम अलग से इसके लिए देखते हैं थोड़ी देर में. मेरे ख्याल से आप ये पहले इतना लिख लो, then we can proceed for some important points regarding this. Okay, but before that let me tell you. ठीक है, पहले आप लिख लीजिए इसको, then I will tell you. देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज नथिंग बट ईटा क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे. इमेजिन कीजिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट अ डिस्टेंस dz इज चेंज बाय द वैल्यू du. तो यहाँ पे जो du है ये है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है. और जो यहाँ पे है dz ये है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है. देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट कैन बी गिवन बाय द टर्म du अपॉन dz. du यहाँ पे क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी, और जो dz है ये है चेंज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. वी कैन से द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर, जैसे हम यहाँ पे बात की थी फोर्स के बारे में. ओके, is proportional to the area of contact. You can see here force is directly proportional to the area of contact of the layer. जितना ज़्यादा होगा area contact का, you know that between the successive layers we can say, जितना ज़्यादा यहाँ पे area होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, force होगा. At the same time du upon dz क्या है, it is nothing but known as a velocity gradient. So we can say here the force required to maintain the flow of layer is directly proportional to the area of the contact of the layer as well as velocity gradient जो होता है ये value. तो अगर हमने ये साइन निकाला और हमने लिया कांस्टेंट को, तो जो हम यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज आल्सो नोन एज ईटा, ठीक है. तो ये है इसके लिए फॉर्मूला. सो F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू du बाय dz. दिस टर्म इज नथिंग बट नोन एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस और वी कैन से लेयर, ठीक है. तो देखिए, अगर इसका वैल्यू, एरिया का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा यूनिटी, आई मीन 1, और ये जो टर्म है दैट इज नोन एज अ ग्रेडियंट और वी कैन से हियर वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका भी वैल्यू यहाँ पे होता है 1. तो ये वैल्यू भी 1 है, ये पूरा वैल्यू पूरा 1 हो गया. तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, सो दैट इज ईटा इज इक्वल टू द फोर्स when area is unit area and the gradient or we can say velocity gradient is also equal to 1. So it's a very simple thing. तो ये है इसका डेफिनेशन. अगर हमें यहाँ पे निकालना है क्या होता है ईटा, ईटा यहाँ पे फिर क्या आएगा, ईटा वी कैन राइट हियर F अपॉन, yes we can say here A upon A into dz, sorry du upon dz, ठीक है. So we can write here one more thing, eta is nothing but the force. देखिए, जैसे अभी हमने लिखा है डेफिनेशन को, क्या दिया है डेफिनेशन में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, फोर्स इट इज मेजर बाय टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स. ये है टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये नीचे है ना इसलिए पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना. सो इन दिस वे वी कैन राइट हियर, सो फोर्स
पर नीचे है, दैट्स व्हाई हियर पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे ए इसीलिए, एंड वी कैन से हियर यूनिट velocity gradient. That's why now you can understand the definition. I think so. Don't go in detail. हमें यहाँ पे बस समझना है एक ही बात को कि the term if it is asked, it will be asked for 2 marks for the short note only, or they may also ask you the definition of the viscosity. चलिए अब देखते हैं क्या होता है इसका यूनिट. Then the SI unit of the viscosity, it is nothing but equal to Newton second per meter square. Newton second per meter square. और इसका जो होता है CGS unit, it is nothing but equal to poise. And 1 poise is equal to 1 gram per centimeter per second, or we can say here 10 raised to minus 1 kilogram per meter per second. These units you have to remember. If you see, we can give many examples of the viscosity. देखिए, जब भी हम लोग मार्केट में ऑयल खरीदते हैं हमारे व्हीकल्स के लिए, देखिए व्हीकल्स में ऑयल का होना बहुत ज़रूरी होता है. इट कैन अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट मशीन पार्ट्स. तो जो यहाँ पे ऑयल होगा इसका ग्रेडेशन हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म विस्कोसिटी. आइडियल ऑयल इज दैट कि जो इसका मतलब ऐसा ऑयल अच्छा होगा अपनी बाइक के लिए या फिर कार के लिए या फिर कोई व्हीकल के लिए, जिसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेचर अगर बढ़े या फिर टेम्परेचर कम क्यों ना हो, फिर भी उसका जो है विस्कोसिटी ये चेंज नहीं होना चाहिए. डिफरेंट ऑयल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, यू नो दैट, जैसे कि कैस्ट्रॉल का होता है, सर्वो का होता है, बट यू नो दैट द मेन थिंग इज दैट इसका जो होना चाहिए विस्कोसिटी, इट शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर. ओके, यू नो दैट. दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि वेन एवर द ब्लड इज मोर विस्कस, जब वो होता है थिक, देन वी कैन से इट इज नथिंग बट द साइन ऑफ cardiovascular disease, or we can say here the problems regarding the heart, blood pressure. तो the reason is that it will become more viscous, it cannot flow properly. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि it is nothing but the sign of cardiovascular disease. And the third example, if you see, we can give, which is the example given here. If you see, हाँ, अभी देखिए जैसे ही हमारे घर में होते हैं ग्लास, जो हम लोग यहाँ पे ग्लास लगाते हैं विंडोज़ को, स्टार्टिंग में जब हम ग्लास को लगाएंगे, आफ्टर 4 to 5 years, एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में या एक महीने में नहीं होगा, लेकिन 4-5 साल बाद जब हम यहाँ पे ग्लास लगाते हैं, जो नीचे वाला जो विड्थ होगा ग्लास का, ये होता है इंक्रीज. द रीज़न इज दैट ग्लास इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कूल लिक्विड, or I will say glass is an example of a liquid having highest viscosity. So these 3 examples that we can give for this term. ठीक है, तो ये सालों साल ऐसा होता है कि जो होता है ग्लास, ये ग्लास धीरे धीरे नीचे की तरफ बहेगा तो वो फ्लो हो जाएगा, इसलिए नीचे का जो रहेगा विड्थ वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास का बढ़ जाएगा. ऊपर वाला तो नहीं बढ़ेगा, बट आई विल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट some minor fraction will be there, definitely will be there. So these are the some examples of the viscosity that we can say. Note down these things properly in your notebook. And now we have to see the numericals. Okay, चलिए तो अभी हम यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम शुरू करने करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, we have to write the important formulae from the whole chapter one by one. Okay, the first one, you know that it is nothing but the formula for rate of diffusion. क्या होता है ये, volume of a gas diffuse डिवाइड बाय होता है यहाँ पे यूनिट टाइम. ठीक है, you know that what is the diffusion here, the spontaneous mixing of 2 or more gases to form the homogeneous mixture.
दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, तो इसका जो आएगा यूनिट क्या होगा वॉल्यूम का, वी कैन से हियर मीटर क्यूब इन केस ऑफ एसआई सिस्टम, एंड टाइम यहाँ पे होगा सेकेंड, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ डेसीमीटर क्यूब, और वी कैन ऑल्सो टेक हियर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। और अगर हमें दिया होता है टेम्परेचर, अगर हमें निकालना होता है टेम्परेचर इन केल्विन, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर जो हमको दिया होगा इन डिग्री सेल्सियस, यस, इसमें हमें ऐड करना होता है 273.15 इस वैल्यू को, तो हमें यहाँ पे जो भी मिलेगा टेम्परेचर वो क्या होगा केल्विन में होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो जो आएगा टेम्परेचर वो भी आएगा केल्विन में। देन बॉयल्स लॉ, यू नो दैट व्हाट इज बॉयल्स लॉ? यस, volume of the given mass of a gas is inversely proportional to pressure at constant temperature as well as number of moles. So we can say here PV is equal to constant, तो यहाँ पे हमें और एक फॉर्मूला मिलेगा P1 V1 is equal to P2 V2, where P1 is nothing but the initial pressure, V1 is initial volume, P2 is a final pressure, and V2 is a final volume. Note down this thing also. बॉयल्स लॉ के बाद है नेक्स्ट वाला, वो है चार्ल्स लॉ। यस, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रिमेंबर, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज किए थे, वॉल्यूम और प्रेशर। अब तब यहाँ पे क्या था कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स थे कांस्टेंट। अभी हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं, तो बाकी जो बचेंगे दैट इज नथिंग बट वी कैन से हियर एट कांस्टेंट, कौन कौन से बचेंगे यहाँ पे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है यहाँ पे V अपॉन T का वैल्यू आएगा कांस्टेंट, तो हमें यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिलेगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। So this is nothing but the Charles law. V1 यहाँ पे है इनिशियल वॉल्यूम, T1 है इनिशियल टेम्परेचर, V2 है फाइनल वॉल्यूम, T2 है फाइनल टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगे, बहुत ही इजी आएंगे। CET में 2019 में इस चैप्टर में से 2 आए थे न्यूमेरिकल्स। रिमेंबर, दैट्स व्हाई दिस आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। ओके, चैप्टर नंबर 5 बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बाद है गे-लुसैक्स लॉ। जिसमें क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो 2 फैक्टर्स बचेंगे इन्हें हमें कर देंगे कांस्टेंट एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, P1 अपॉन T1, क्योंकि P अपॉन T यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट जैसे यहाँ पे था, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ऑब्वियसली यहाँ पे P1 है इनिशियल प्रेशर, P2 है फाइनल प्रेशर, T1 है इनिशियल टेम्परेचर, T2 है फाइनल टेम्परेचर। देन द नेक्स्ट वन इज 6th one is here, that is nothing but the Avogadro's law. Avogadro law. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to number of moles. वापस देखिए यहाँ पे हमने लिया है 2 वेरिएबल्स को, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को, इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर को हम लोग रखेंगे कांस्टेंट। वी हैव टू राइट हियर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो वी कैन राइट हियर V अपॉन N इज इक्वल टू कांस्टेंट, and one more formula we can derive here also, V1 upon N1 is equal to V2 upon N2। यहाँ पे V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम, N1 है इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, N2 क्या है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इसके लिए फॉर्मूला पता है ना आपको क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ये हमें दिया जाएगा, मोलर मास हमें पता होना चाहिए, तो मोलर मास यहाँ पे होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। ये हो गया अवोगाड्रोस लॉ।
then we should know the ideal gas equation. PV is equal to nRT. Ideal gas equation is very popular. It must be remembered. PV is equal to nRT. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर और साथ ही साथ जितने भी मैंने आपको बताया है कन्वर्जेंस, देखिए मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने लिए थे सब कन्वर्जेंस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में मास का क्या होता है, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, पास्कल और वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, mm ऑफ Hg, एटमॉस्फेयर, ये सभी जो है कन्वर्जेंस आपको बार बार लिखने होंगे, अच्छे से लिखने होंगे, तभी आपको 12th में न्यूमेरिकल्स में फायदा होगा। ठीक है, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर P इज प्रेशर ऑफ अ गैस, V इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज नथिंग बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नोट डाउन दिस थिंग आल्सो, P pressure of a gas, V volume of a gas, N number of moles of a gas, R molar gas constant, T absolute temperature. Then we can also get here combined gas equation, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Obviously P1 V1 T1 are nothing but the pressure, volume, temperature of initial state. P2 V2 T2 pressure, volume, temperature at the final state. This is known as a combined gas equation. इसके ऊपर भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। Then the next one is here, कौन सा है बाद में, डाल्टन्स लॉ, you know that डाल्टन्स लॉ जो है पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन्स लॉ, टोटल प्रेशर PT is equal to P1 plus P2 plus P3. Total pressure of a mixture of a gas is equal to the partial pressures exerted by the individual gas in the mixture of gases. So PT यहाँ पे क्या होगा, PT it is nothing but the total pressure of the mixture. It is equal to P1, मतलब क्या, partial pressure of the first gas. ये क्या है, partial pressure of the second gas. ये क्या है, partial pressure of the third gas. In this way we can write the Dalton's law. इसके अलावा और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे बचे हैं क्या, यस यू नो दैट, और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 10th वाला, अगर हमें निकालना है P1 का वैल्यू, देन P1 हियर सपोज पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द x1 into P टोटल, ये भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, जहां पे x1 क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पता है क्या होता है, अगर समझिए यहाँ पे दो है गैसेस, तो मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस, दैट इज विल बी इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है पहले वाले गैस का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फर्स्ट गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकेंड गैस। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है x2 का वैल्यू, x2 यहाँ पे मालूम है क्या आएगा, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। क्या है यहाँ पे N2, वेयर N2 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकेंड गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन से, मतलब अगर यहाँ पे दो है गैसेस तो यहाँ पे दो ही वैल्यूज आएंगे, जैसे कि हमने सॉल्व किया था लेक्चर में, तो यहाँ पे 3 थे, N1 प्लस N2 प्लस N3, अगर दो है तो बस दो ही लेना है आपको। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन को। क्या है P1 यहाँ पे, P1 इज नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट गैस इनटू टोटल प्रेशर of the mixture of the gases. So in this way we can also write this formula, note down these things properly in your notebook. ठीक है, इसके अलावा और ये 3 फॉर्मूले बचे हैं। M, what is M here? M is nothing but here molar mass. M is nothing but the molar mass here. D, जो यहाँ पे D है, it is nothing but the density of the gas. R, आपको पता है क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये डिपेंड करेगा कि कौन से दिए हैं आपको यूनिट्स, ठीक है। तो यू नो दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R वी हैव डिराइव्ड, दैट आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके तो जितने भी वैल्यू है आर के ये आपको प्रॉपरली याद रखने हैं. देन व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू हियर? T एब्सोल्यूट टेम्परेचर. P यहाँ पे क्या होता है? P is nothing but here the pressure. Then the next formula, you know that the P, I mean what is P here? The pressure of the dry gas. It is equal to total pressure minus PAQ. जहाँ पे ये जो PQ है, I mean sorry not PQ, it's a PAQ. It is nothing but the pressure or we can say here aqueous tension. आपको पता है क्या होता है aqueous tension? Yes, it is nothing but the pressure exerted by the saturated water vapors. That is called as aqueous tension. तो इसलिए जब कभी हमको निकालना होता है प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस तो हम क्या करते हैं? टोटल प्रेशर में से aqueous tension को हमेशा करते हैं माइनस. ओके बिकॉज इट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड बाय द वाटर वेपर्स. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यू नो दैट नथिंग बट नोन एज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो इसमें क्या होता है? Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT. और आपको पता है क्या होते हैं इनके वैल्यूज. एंड Z also equal to V real upon V ideal. I mean volume of the real gas divided by V. It is nothing but the volume of the ideal gas. तो ये सब है फॉर्मूले. चलिए अभी लिखते हैं न्यूमेरिकल. आपके टेक्स्ट बुक में दिया है फ्रॉम द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर A. कितना बड़ा है न्यूमेरिकल? A balloon is inflated with the helium gas at room temperature. ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है? टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. It is always taken as a 25 degree Celsius or we can say it as 298 Kelvin. Remember, also known as a room temperature at 1 bar pressure. So यहाँ पे जो चीजें हमें पहले दी हैं ये हम लोग नोट करेंगे. लिहून घ्यायचं आपण प्रॉपरली. इथे आहे प्रेशर आपला P1. P1 काय दिलायचं आपल्याला? इट इज इक्वल टू 1 बार. ठीक है ना? देन when its initial volume is 2.27, so V1 is nothing but initial volume. त्याची व्हॅल्यू आहे 2.27 liters and allowed to rise in a air. As it rises in the air, external pressure decreases and the volume of the gas increases. Okay, till finally it bursts when the external pressure is 0.3 bar. So P2 का वैल्यू भी हमें यहाँ पे दिया है और वो है 0.3 bar. What is the limit at which volume of the balloon can stay inflated? म्हणजे तुम्हाला विचारले at which volume. So V2 you have to calculate. रूम टेम्परेचर म्हटलंय. टेम्परेचर कसं असणार आहे रूमचं? इट्स अ कॉन्स्टंट. सो टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू नो दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यस, P1 V1 is equal to P2 V2 at constant temperature and number of moles. We can apply the Boyle's law. तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है V2 का वैल्यू तो क्या करना पड़ेगा? देखिए प्रॉब्लम कितना बड़ा दिख रहा है हमको, but the solution is very very small. Let's see here. V2 is equal to what here? P1 into V1 divided by P2. काय येतं P1 ची व्हॅल्यू? P1 1 बार. V1 ची व्हॅल्यू काय याच्यामध्ये? 2.27. What is the value of P2? 0.3. ठीक है. देखिए ये ऊपर भी अगर प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है तो ये जो बार बार है ये तो नहीं आएगा, कट हो जाएगा ना. सो चलिए हमें यहाँ पे काम करना है. मल्टीप्लाई करते हैं 10 से ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा 22.7. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ये हो जाएगा शिफ्ट इधर और नीचे आएगा बस 3. तो 3 7 21. ठीक है ना. तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 1 हो गए. कितने? 70. 3 5 15 वापस बचते हैं 2 हो जाएगा 20. 3 6 18 मतलब वापस 2 बचेंगे. तो 7.566 इट्स अ रिकरिंग. सो वी कैन राइट इट एट 7.5
0.167, ठीक है ना, दैट इज द वैल्यू एंड वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट। जो भी यहाँ पे है यूनिट लीटर वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ V2 इट इज नथिंग बट इक्वल टू 7.567 लीटर्स। जेवढा प्रॉब्लेम मोठा तेवढा तो टामटूम असतो, टामटूम म्हणजे इझी असतो, ठीक आहे ना। सो नोट डाउन दिस थिंग। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है वो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। अ सिरिंज हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो द इनिशियली वी हैव टू राइट द गिवन थिंग्स। सो गिवन क्या दिया है हमें, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। सो P1 is equal to 1 atmosphere. If you plug the end so that no gas can escape and push the plunger down, what must be the final volume? देखिए पूछा है आपको क्या आएगा फाइनल वॉल्यूम। V2 तुम्हाला काढायचं याच्यामध्ये, ठीक है। To the change the pressure to 3.5 atmosphere. So the P2 is given to you. It is equal to 3.5 atmosphere. Pressure दिले, volume दिले. Okay, assuming it will happen at a constant temperature, जे असणार आहे room temperature, ठीक है ना। A syringe has a volume of 10 centimeter cube at a pressure of 1 atmosphere. Okay, written. If you plug the end so that no gas can escape and push the plunger down, what must be the final volume to change the pressure to 3.5 atmosphere? So obviously we have to assume here at constant temperature. So we have to write here at constant temperature and number of moles according to Boyle's law. P1 V1 is equal to P2 V2. That's why V2 is equal to P1 into V1 divided by यहाँ पे क्या आएगा, P2 आएगा ऑब्वियसली। तो P1 का जो वैल्यू है वो है 1 एटमॉस्फेयर, जो वैल्यू है V1 का वो है 10, P2 का वैल्यू यहाँ पे है 3.5। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 100, नीचे आएंगे 35। ओके, नाउ 5 7 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे आ गए 20/7, 7 2 जा 20, सॉरी 7 2 जा 14, 6 आएंगे हो गए 60, 8 5 7.857 आना चाहिए, और ये हम लोगों ने निकाला है वॉल्यूम, तो इसका भी यूनिट वही आएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो द वैल्यू ऑफ V2 इज इक्वल टू आना चाहिए 2.857 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन दिस थिंग्स। लॉग बुक तो यूज करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार लॉग यूज करो। अगर आपको आता है कुछ इस तरीके से चलेगा। लॉग बुक आपको तभी यूज करने का है जब आपको लगे कि द कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट एंड नॉट कन्वीनियंट टू डू लाइक दिस, देन यू कैन यूज द लॉग बुक ऑल्सो, ठीक है। क्या सही है हमारा आंसर? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑप्शन मतलब इसमें से सी वाला जो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में वो सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर पहले दिया है, इसको नोट डाउन करेंगे। क्या दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हमने इसमें ऐड किया 273.15 तो हमें मिलेगा वो केल्विन में। तो चलिए इसका वैल्यू होता है फिर 273.15 केल्विन, ये आता है हमारा T1 का वैल्यू। और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है V1 वो है 2 डेसीमीटर क्यूब। रिमेंबर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है ना हमें। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे बोला है कांस्टेंट, सो प्रेशर इज कांस्टेंट। ऑब्वियसली प्रेशर अगर होता है कांस्टेंट तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा चार्ल्स लॉ को।
ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे हमें दी है दो कंडीशन। व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज गिवन हियर, द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो है हमारा इनिशियल टेम्परेचर इससे जो कि क्या है दिया हुआ, इट इज इक्वल टू 273.15। तो यहाँ पे जो T2 का वैल्यू है वो आएगा 273.15, जो कि है हमारा इनिशियल टेम्परेचर। इसमें 10 से हमें इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 283.15, ये आएगा केल्विन में, ठीक है। एंड दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे है T2 इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, सो 273.15 ये है हमारा इनिशियल टेम्परेचर माइनस 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 263.15 केल्विन मिलेगा। तो दो अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस है। तो पहले कंडीशन जो है इसमें देखते हैं, देखिए कंडीशन चाहे कौन सा भी क्यों ना हो, हमें यहाँ पे जो यूज करना है वो तो है चार्ल्स लॉ। यस, इट इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो हमें अगर फाइंड करना होता है V2 को तो क्या करना पड़ेगा, यस V1 इंटू T2 अपॉन यस T1। क्या है V1 का वैल्यू, ये है 2 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे दिया है देखो। T2 इज इक्वल टू, देखो पहले केस में हम लोग अगर देखेंगे तो वैल्यू है 283.15, और क्या है T1 का वैल्यू, वो है 273.15, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यहाँ पे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 + 1, 3 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, नीचे क्या है 273.15। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, और मैं अभी यहाँ पे लॉग बुक का इस्तेमाल करूँगा। तो बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू टू नोट डाउन दिस थिंग, till the time I will find my logbook I had to search it. ओके तो ये है मेरा लॉगबुक मेरे पास। ओके, लेट्स फाइंड द वैल्यू हियर। क्या दिया है 566.30 और 3 वी कैन राइट हियर 273.15 log 566.3 माइनस log 273.15। जब होता है डिवाइड तो करना पड़ता है माइनस। हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में है 3 डिजिट्स 1 2 3, इसमें से हमको एक माइनस करना होगा, मतलब 2 आएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। आपको लॉग देखना है 56 का, 6 में 3 का डिफरेंस आपको ऐड करना होगा। तो 56 का जो आता है 6 में, ये वैल्यू आ रहा है 7528 प्लस 3 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा 2 का, मतलब 7528 प्लस 2 आएगा 7530 ये मेरा वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे भी डेसिमल के लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ 3 डिजिट्स है -1, तो 2 ही आएगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। आपको देखने का है 27 का 3 में 1 का डिफरेंस करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। 27 का अगर हम देखेंगे 3 में तो क्या आता है, 27 का 3 में आ रहा है 4362 और 1 का डिफरेंस है 2, तो है 4362 प्लस 2 आएगा 4364, तो 2.7530 माइनस 2.4364, 10 minus 4 is nothing but equal to 6, 12 minus 6 is 6, 4 minus 3 is equal to 1, 7 minus 4 is 3, ये आ रहा है मेरा वैल्यू 0.3166। आप इसका देखोगे एंटीलॉग देखने का जो तरीका है आपको पता होगा,
यस, एंटीलॉग आप देखोगे पॉइंट के आगे, पॉइंट 31 का आप देखोगे 6 में 6 का डिफरेंस ऐड करोगे तो पॉइंट 31 जो है इसका 6 में क्या आता है वैल्यू, यस वैल्यू आ रहा है 2070 और 6 का जो डिफरेंस यहाँ पे है वो है 3, तो 2070 प्लस 3 इज इक्वल टू 2073, 2073 ये आ रहा है आंसर। 0 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक तो 0 प्लस 1 तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। या फिर आपको अगर यहाँ पे होता 1 तो क्या करो बताएगा, सिंपली यहाँ पे आपको देना है पॉइंट और जो भी इसको हम लोग बोलते हैं इट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, इट विल गो टू द पावर ऑफ 10। सो यहाँ पे आता है 10 रेज़ टू 0 एंड यू नो दैट 10 रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1, तो वैसे भी आपको वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। सो 2.073 हमारा आंसर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पे चेक करके, यस डेसीमीटर क्यूब राइट आंसर। चलिए इसी तरीके से दूसरा जो कंडीशन हमें यहाँ पे दिया है ये सेकंड वाला, दूसरा कंडीशन क्या है, चलो यहीं पे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बॉयल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ को V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। क्या है V1 का वैल्यू, इधर V1 तो यहाँ पे है 2, T2 का वैल्यू जो लेंगे दूसरे कंडीशन में है वो 263.15 अपॉन T1 का वैल्यू क्या है, T1 का वैल्यू है वही 273.15। चलो पहले करते इसको मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 अपॉन 273.15, ठीक है। सो लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस जो भी आएगा उसका हम देखेंगे एंटीलॉग। सो लॉग ऑफ 526.3 माइनस लॉग ऑफ 273.15। सो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक हियर, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आएगा 2, आपको देखने का है 52 का 6 में और 3 का डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे 52 का 6 में क्या आ रहा है, इट इज इक्वल टू 7210 आ रहा है। 52 का 6 में 6 का जो मीन डिफरेंस है वो है 5, तो 7210 प्लस 5 इज 7215, 7215 आ रहा है, चेक करके देख लो आप भी, ठीक है। माइनस इसका तो हमें लिखा है लॉग ऊपर, देखिए ये है 2.4364, सो 2.7215 माइनस 2.4364, 5 माइनस 4 इज 1, क्या आएगा 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 एंड विल बी 0। तो ये आ रहा है 0.2851। इसका आप लोग देखोगे एंटीलॉग, इसका जब आप लोग देखोगे एंटीलॉग तो मेरे ख्याल से 0.28 का 5 में जो वैल्यू आएगा, 0.28 का 5 में 1928 आ रहा है वैल्यू, 1 का डिफरेंस है 0, तो 1928 ही हमारा आंसर होगा। 1928 पॉइंट देने का तो तरीका मैंने बताया आपको, आफ्टर द फर्स्ट डेसिमल गिव द पॉइंट, और जो है कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट हो जाएगा 10 की पावर पे, तो आएगा 10 रेज़ टू 0। सो आंसर इज 1.928, ये है डेसीमीटर क्यूब। लेट मी चेक, यस 1.928 इज राइट आंसर। तो ये है, ये साइड में रखो आप लोग, दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, बाकी के जो न्यूमेरिकल्स है हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल द कन्वर्जेंस यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में 2 क्वेश्चंस आए थे सीईटी में इस चैप्टर में से, ओके, दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू टू स्टडी दिस चैप्टर प्रॉपरली एंड आस्क
फॉर एनी डाउट. ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी डाउट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय. देखिए इससे पहले आई विल गिव वन होमवर्क. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है इसमें से डी एंड ई, ये दो जो न्यूमेरिकल्स है दे आर आल्सो बेस्ड ऑन द चार्ल्स लॉ एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू. चार्ल्स लॉ के ऊपर ही करने बेस है ये प्रॉब्लम्स. डी एंड ई काफी सिंपल है, देख लो एक बार, और आपको वो सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं. ठीक है.